ओके, अब कौन पूरी क्लास के साथ शेयर करना चाहेगा? वुड लाइक टू शेयर द होल क्लास। यहाँ माता जी को दीजिए प्लीज। Hare Krishna. Holy name has the power to uplift me, carry me gracefully through the storms of life. When I'm confused, don't know what is right or what is wrong, when the outside noise or my inner desires are louder than the truth, then the holy name, my best friend, has the ability to show me the righteous path. Since it is not different from the God itself, then to have a best friend who has created this world is the best superpower. Hare Krishna. जय, वेरी नाइस। आपने पूरा पोयम लिख दिया है, वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू। कोई प्रभु लैंग्वेज में से कोई शेयर करना चाहिए? यस, राजेश जी को दीजिए। नया आता रहेगा तो मैं सोच रहा हूँ ये राइट दिखाए भी, लिखा भी जाए ना। अच्छा, माता जी ने पूरे पोएटिक फॉर्म में लिखा था। यू कैन पोस्ट इट माता जी ग्रुप में। एक ग्रुप में, हाँ, ग्रुप बनाया हुआ ना आपने, शी कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप। क्योंकि इतना मिलेगा नहीं। हाँ, यस राजेश जी आप बोलिए फिर। या The holy name reminds me that I am constantly a part of Krishna. वाओ, In this Dukhalaya, the holy name is my guiding light. हरी वाह, वाह, Chanting the holy name increases my love for Krishna. जय, वेरी नाइस। कोई और माता जी शेयर करना चाहेंगे? यस, टू माता जी। Lord's name rid us of all kinds of fears and provides us with the opportunity to go in the state of constant peace, relief, and satiation. Even in the desperate, nihilistic, and sorrowful times, Lord's name is always with us. In my whole life, I have realized and experienced Lord has fulfilled all our desires sooner or later. Jai. There are so many good poets. Yes, Shalini Mataji. Krishna's name rids me of all fear even in my day-to-day activities. Krishna's name dissipates the negative influences even in our day-to-day life and creates positivity in work, in our relationships, at home, with our children, our spouse. Krishna's name helps us deal with situations calmly and maturely, and we start seeing the good in others. Good, very nice. Prabhu ji, और कोई? Yes, Anand ji. Taking holy name is the only way of liberation. Wow. Point number 2, holy name is the eternal wealth. Wow. This is the quickest and safest and sure way of attaining God. Jai. Taking holy name is very soothing and solves all our problems. Jai. Hari Vam. Very nice. Yes, Harish Prabhu. Oh, sorry, Chetan Prabhu. Hare Krishna. The holy name of Krishna is my best friend, and it is always there with me. When as a child I was fearful, I remembered God through His names. And even today, whenever I am in any problem, it's God's name that I remember first. So, a friend in need is a friend indeed, yes. So I remember Krishna in every moment of my life through japa. Jai. So nice. और कोई शेयर करना चाहेगा? पीछे दीजिए प्रभु, यहाँ पे मुकुंद शेयर प्रभु। Hare Krishna. Holy name is my best friend because it helps us to go back to Godhead. Yeah. Holy name helps us to make us human. Ah. Holy name helps us to provide shelter, make us humble, increase our tolerance power, and holy name helps us to remove our sinful propensity. Thank you. Jai. That means हरि नाम से सारे अच्छे गुण हमारे में आ जाएंगे। आप कहना चाहती हैं कुछ? हाँ। Prabhuji, I want to add that today I feel that I have missed a lot during my childhood. I should have started this very early. I also feel that I also regret the fact that when my son was much younger, an infant, I just wish I could have created this. Although Rajesh Prabhu has done whatever he could, but I think I should have done more. No problem. Better late than never. All the best. Yes, yes, Prabhuji.
इश्क होने लगे तो पूजा पाठ किया करो, इश्क होने लगे तो पूजा पाठ किया करो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी और बला होगी तो टल जाएगी। अरे वाह, जय 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 जय। सही बात है सही बात है। इश्क मोहब्बत करनी है तो कृष्ण से करनी है ना। वो थे शाम के दोस्त, हमने बनना है श्याम के दोस्त। सो खुशी हो या गम, हरे कृष्णा हरे राम, दैट्स ऑल है ना। सो थैंक यू वेरी मच। सो हम देखते हैं वास्तव में जो हरिनाम है हमारे सच्चे मित्र हैं, है ना। हरिनाम से हमारे जीवन में सारे अच्छे गुण विकसित होते हैं। हरिनाम से एक अच्छा मित्र कौन है? जो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ को ला सके। हरिनाम हमें टॉप मोस्ट ब्लिस प्रदान करता है। इस संसार में हमने कुछ ब्लिस चाहिए, उसके लिए बहुत प्राइस भरना पड़ता है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे बड़ी कीमत है जन्म मृत्यु का बंधन। यहाँ पे हमें कुछ भी आनंद चाहिए, कुछ पाप करना पड़ता है, कुछ उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, तब कुछ आनंद मिलता है, वो बंधन का कारण बनता है। लेकिन हरिनाम हमें इतना आनंद आता है और साथ में मुक्त भी करता है, इसलिए हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में हरिनाम का होना चाहिए मेरे बेस्ट फ्रेंड, लेकिन प्रैक्टिकली आज की डेट में मेरे जीवन में हरिनाम का क्या महत्व है। तो मैं आपको 5 ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन है होली नेम इज़ एवरीथिंग फॉर मी। सब कुछ नहीं करना मुझे, खाली हरिनाम लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन है होली नेम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। नंबर 3 होली नेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 होली नेम इज़ ओके, आई कैन टेक। एंड नंबर 5 होली नेम इज़ नथिंग फॉर मी। तो आप में से कितने भक्त हैं जो कहते हैं होली नेम इज़ एवरीथिंग फॉर मी? एवरीथिंग है, हाँ, लेकिन एवरीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना सोना चाहिए, हरे कृष्णा बस 24 घंटे। जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, ऐसा है कोई? माई का लाल कोई नहीं है ना, ईमानदारी की बात है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। होली नेम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ऐसे कितने भक्त कहेंगे? वेरी गुड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शर्मा जी वेरी गुड, जोर से हाथ खड़ कीजिए, शर्मा के नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जितने मर्जी लाइफ में इश्यूज आ जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट हरि नाम है, ठीक है। होली नेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। बाकी भी इश्यूज हैं, ये भी हैं, तो आई शुड टैकल इट, है ना। होली नेम इज़ ओके, कर लेता हूँ 1-2 माला कभी कभी, इट्स ओके, इट्स नाइस टू चैंट, या। एंड होली नेम इज़ नथिंग फॉर मी, ऐसा भी नहीं है ना। तो हमने देखा फर्स्ट और 5 ऑप्शन में कोई भी नहीं है, हम सब बीच में हैं ना। लेकिन एटलीस्ट होली नेम शुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। वाई होली नेम शुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी? इन माई लाइफ होली नेम शुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। सोचिए, मेरा बिजनेस है, मेरा परिवार है, मेरी सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरि नाम होना चाहिए। क्यों? It's a tree, it's a root of the tree. Okay, very good. Or? This is the only Kali Yuga medicine. This is only the Kali Yuga medicine which is given by Chaitanya Mahaprabhu, which connects the Lord. Only the medicine for Kali Yuga. Only medicine for the Kali Yuga. Okay, so most important. अगर ये नहीं लेंगे तो बीमार पड़े ही रहेंगे। ये बताइए, इनको दीजिए ना, ये आप हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं। इट इज़ ओनली परमानेंट थिंग, वेरी गुड। और कोई? यस, पीछे माता जी को दीजिए, माता जी। चलिए पहले आप। प्रभु जी, जो हमारा वास्तविक जीवन है वो हम होली नेम से हमें अपने वास्तविक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यस, असली जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। या मुझे मैंने क्लास में सुना था, जैसे जब का सेक्शन है, अगर हम हरि नाम लेते हैं तो हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो डिवोशनल सर्विस बन जाती है। या कोई भी काम करते हुए हम हरि नाम लेते हैं, वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। गुड। यस माता जी। जो हमें रोल, जो भी हम रोल कर रहे हैं, जैसे आपने इतने सारे रोल्स
कृष्णा ने दिया है। या So he is the creator of that उस रोल में। तो इसीलिए जिन्होंने वो रोल का हमें कैरेक्टर जो हमें दिया है उन्हीं को याद करना चाहिए एज अ डायरेक्टर। ओके, गुड पॉइंट। यस, पीछे माता जी। कृष्णा प्रभु जी होली नेम जो है वो मुझसे कोई चोरी नहीं कर सकता। हाँ, एकमात्र ये नेम है जो हमारे साथ ही जाएगा। गुड, वेरी नाइस। ये ऐसा धन है कोई चुरा नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, आपके से याद आता है कि हरि नाम हर परिस्थिति को शुद्ध कर सकता है। इस्कॉन मुंबई में जुहू में आप गए थे ना, उस मंदिर को बनाने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया। प्रभुपाद जी ने ज़मीन खरीदी थी, वो एक मिस्टर नैयर थे, वो अपना उनका न्यूज़पेपर भी था और उनका एक अपना लैंड माफिया भी चलता था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को चीट करने का प्रयास किया। लैंड हमें भी बेच दी, किसी और को भी बेच दी, बहुत डिस्प्यूट हो गया। और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल, वो पहले मेयर रह चुका था बॉम्बे में, शरीफ रह चुका था। तो उसने बहुत तंग किया भक्तों को और बाद में उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी वाइफ ने भी छोड़ा नहीं पीछा। क्या हुआ कि 80s में क्या हुआ, उसकी वाइफ कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कराती रहती थी भक्तों के ऊपर, और भक्त लोग बड़े इनोसेंट थे, फॉरनर्स थे सब, बहुत परेशानियाँ थी। तो एक बार क्या हुआ, ये रियल लाइफ स्टोरी है। एक बहुत रिच मैन, धनी व्यक्ति आया मंदिर में, उसने अपने गाड़ी पार्क की, जूते उतारे, अंदर दर्शन करने गया, बाहर आए तो जूते गायब। उसने शोर मचा दिया, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड बोला थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ढूंढ के आता हूँ। उस समय मंदिर के बाहर झुग्गियाँ होती थी, तो झुग्गी झोंपड़ी में एक व्यक्ति को पकड़े लाया, जूते मिल गए, उसने जूते चुराए हुए हैं। बोले मिल गया, बताओ इसके साथ क्या कर। बोले खूब पिटाई करो इसकी। सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। सारे झुग्गी वाले इकट्ठे हो गए, शोर शराबा मच गया बिल्कुल मंदिर के गेट के ऊपर। उस समय मंदिर के कमांडर होते थे महाबुद्धि प्रभु, वो अमेरिकन थे। वो बाहर आए कि गेट पे क्यों शोर मचा रखा है। बोले ये चोरी वोरी हो गई। बोले अंदर आके बात करो, गेट पे शोर मत मचाओ, अंदर आओ। तो वो आगे आगे जा रहे थे, सब पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक उनको पीछे बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे पेड़ से ऊपर से नारियल नीचे गिरता ना। तो पीछे मुड़ के देखा तो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में एक आयरन रॉड थी, और उसने आयरन रॉड से जो चोर जिसने चोरी की थी उसका सर फोड़ दिया था, और वो व्यक्ति वहीं मर गया था। उसकी मृत्यु हो गई थी, पूरा खून हो गया। मंदिर में एक हत्या हो गई, बहुत बड़ा ये कांड हो गया एकदम। पुलिस आ गई, और पुलिस ने जितने भी टेंपल में डिवोटीज थे, 15 भक्त थे, सारे बड़े बड़े सन्यासीज थे, और सारे अमेरिकन से फॉरेनर्स थे, सबको जेल में बंद कर दिया। सोचिए, ऑल ऑफ ए सडन इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, बड़े बड़े हमारे महाराज लोग सब जेल में बंद, क्या करें, बड़ी बड़ी मुसीबत है। तो फिर उसमें एक थे प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका नाम था अमोघ लीला प्रभु, उनको हिंदी पढ़नी आती थी। और एक और प्रभु जी के शिष्य थे श्रीधर स्वामी महाराज। श्रीधर स्वामी महाराज को जॉली स्वामी कहते थे, हमेशा वो मजाक करते रहते थे, हंसते रहते थे। तो ऐसे टेंस मोमेंट में भी उन्होंने बोला एक पोस्टर लगा हुआ है, आधा फटा हुआ है। तो उन्हें अमोघ लीला पूछा हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा था कीर्तन सागर। बोले यार कृष्णा वॉन्ट्स अस टू डू कीर्तन। तो बोले अभी इसी समय कीर्तन करते हैं जेल में, और दोपहर का समय था। तो श्रीधर स्वामी महाराज ने बोला दोपहर का समय है, भगवान की राजभोग आरती होती है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे दीवार है ना, तो एक भक्त पुजारी बन के आरती करने लगा ऐसे, और बाकी इस भक्त नीचे खड़े होकर कीर्तन करने लगे, नाचने लगे से, जैसे मंदिर में होता है, पुजारी आरती कर रहे, भक्त नाच रहे। तो बाहर जो पुलिस वाले थे वो हैरान हो गए, क्या कर रहे हैं ये, एक यूँ हाथ घुमा रहा है और सब नाच रहे हैं। तो लेकिन हरिनाम को इतने उन्होंने हृदय से लिया, पूरा जेल का वातावरण जिस सेल में थे बड़ा आध्यात्मिक हो गया। उसके बाद जैसे आरती ख़त्म हुई, एक भक्त ने आरती लेके ऐसे गया, सब यूँ करने लगे, पूरा जैसे आरती हो रही है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया, जो हवलदार पुलिस वाला था वो बोले देखता हूँ खो क्या रहा है। लेकिन इतने वो इन्फ्लुएंस हो गए, उस सेल में प्रवेश करने से पहले उसने जूते उतार दिए, उसको लगा मंदिर ही है। तो उसके पास भी गया, उसने भी यूँ कर दिया। तो बड़े पूरी आरती हुई आधे घंटे की। तो फिर लंच टाइम हो गया, तो जेल के बंदों बोला चलो लंच करो। बोले हम लंच नहीं करते, हम प्रसाद पाते हैं। बोले प्रसाद कहाँ से आएगा, मंदिर से बोला। तो मंदिर से प्रसाद मंगवाया, जब 15 की जगह पूरा ड्रम भर के आ गया, खुद भी खाया, पूरे पुलिस वालों को बांटा। फिर शाम को संध्या आरती का समय हो गया, फिर संध्या आरती हुई। फिर सुबह अगले दिन मंगल आरती का समय 4:30 बजे फिर पूरी आरती हो रही है, पूरे पुलिस वाले भाग ले रहे हैं। गुरु पूजा हुई, फिर 8 बजे भागवतम क्लास हुई,
पूरा प्रोग्राम चलता रहा। धीरे धीरे क्या हो गए, सबकी बेल हो गई। 2 लोग टिके रहे, एक तो महाबुद्धि प्रभु जो टेम्पल कमांडर थे, एक जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो दोनों रहे। बाद में दूसरे लोग आ गए जेल में। तो इसमें तब भी वो प्रोग्राम चलता रहा। महाबुद्धि प्रभु अमेरिकन थे, वो भागवतम क्लास देते थे इंग्लिश में। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बंगाली था, उसको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, जो समझ था वो ट्रांसलेट कर देता था। तो ये चलता रहा। उसके बाद महाबुद्धि प्रभु भी रिलीज़ हो गए, खाली सिक्योरिटी गार्ड रह गया और इसको शिफ्ट कर दिया बॉम्बे के सेंट्रल जेल में। लेकिन इसको इतना एडिक्शन हो गया, इसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि भगवान के नाम हर स्थान पर लिया जा सकता है, किसी भी स्थान में लूँगा मैं दुखी नहीं रहूँगा। तो ये सिक्योरिटी गार्ड सेंट्रल जेल में जाके उसने प्रोग्राम कंटिन्यू किया। आसपास से कुछ लोगों को बिठाता था, हरिनाम लेता था, उसको भागवतम सुनाता था। हरे कृष्णा, ये है हरिनाम का प्रभाव। तो हरिनाम हमारा असली मित्र है, जीवन की हर परिस्थिति को ये शुद्ध कर सकता है। इसलिए हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, कल हमने चर्चा की थी कि हम इस संसार में जो भी कार्य करते हैं, किसके लिए करते हैं? आनंद पाने के लिए। जो आनंद है वो हमारी कॉन्शियसनेस पे निर्भर करता है। आनंद हमारी फैसिलिटीज़ पर निर्भर नहीं करता। फैसिलिटीज़ से हमें कंफर्ट मिलता है, सुख नहीं मिलता। आप समझे बात को? सुख और सुविधा में अंतर है। ब्लिस में और कन्वीनियंसेस में, सुविधाओं में अंतर है। आजकल हमारे कंफर्ट्स बढ़ गए हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सुख घट गया है। तो कंफर्ट से सुख नहीं मिलता, सुख चेतना से मिलता है। मेरी कैसी मेंटेलिटी है, मेरी कैसी चेतना है। अगर मैं बहुत एनवियस हूँ और मेरे पास बहुत कंफर्ट्स हैं, क्या एक द्वेषी व्यक्ति खुश रह सकता है? जितना मर्जी हो जाए। हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ था, पूरे ब्रह्मांड का राजा था, लेकिन दुखी था। प्रहलाद महाराज छोटे से बच्चे थे, कोई पावर नहीं थी उनके पास, बहुत आनंद में थे। तो हमारी जो आवर हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर कॉन्शियसनेस। जितना हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होगी उतने हम खुश रहेंगे, और जितनी हमारी कॉन्शियसनेस डाउन होगी, चाहे हम संसार के पूरे संसार के राजा क्यों ना बन जाए, हम दुखी रहेंगे। ठीक है? और कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने का कलयुग में सबसे आसान तरीका क्या है? चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना अच्छे ढंग से हम जप करेंगे उतनी हमारी कॉन्शियसनेस क्लियर होती जाएगी, अपलिफ्ट होती जाएगी, उतने हमारे जीवन में आनंद बढ़ता जाएगा। कॉन्शियसनेस डाउन है हमारी, हम जो मर्जी संसार के बड़े बड़े पावर पोस्ट पोजीशन ले लें, धन इकट्ठा कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन हम खुश नहीं रह सकते। इज इट क्लियर? तो जब हम सुबह उठ के जप करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी कॉन्शियसनेस को फाइन ट्यून करते हैं। अच्छा जप करके हम बाहर जब जाते हैं तो हम दुनिया को अच्छे ढंग से डील कर पाते हैं। ओके, तो अब आप चर्चा करेंगे कि कैसे हमें अच्छा जप करना चाहिए। यस चेतन प्रभु। प्रभु जी आपसे बात की, जैसे हम तो इस्कॉन में हमेशा कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो अभी जस्ट ट्राई किया कि एक्चुअली ये कॉन्शियसनेस का थोड़ा बहुत डीपली बता दें क्या मतलब है कॉन्शियसनेस का। ओके, वेरी गुड। जस्ट द रियलाइजेशन दैट गॉड इज देयर, व्हाट एग्जैक्टली? कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना। कॉन्शियसनेस इज द एनर्जी ऑफ द सोल। एक कॉन्शियसनेस का लेवल ये है कि कॉन्शियस सोल हमारे हृदय में है और पूरी कॉन्शियसनेस शरीर में है ना, जीवित ऐसे मालूम चलता है। इससे सिम्टम ऑफ सोल। और एक कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्या है? माय थॉट प्रोसेस, मेरी मेंटेलिटी, मैं कैसे सोचता हूँ ना, कैसे चीज़ों को देखता हूँ। राइट? इस संसार में मैं अपने आप को एज एन एन्जॉयर देखता हूँ, किसी को एज ए कॉम्पिटिटर देखता हूँ, ये मेरी कॉन्शियसनेस के ऊपर है। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो पॉल्यूट हो जाती है। हम सब यहाँ पे खुद को एन्जॉयर मानते हैं। अरे वो अपने आप को हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट, सो आई एम द बेस्ट एन्जॉयर। दैट इज़ द कॉन्शियसनेस एवरीवन हैज़।
लेकिन जैसे जैसे हम हरि नाम का जप करते हैं हमें लगता है नहीं, हमें एज एन एन्जॉयर नहीं, एज ए सर्वेंट रहना चाहिए. सो दैट इज अ चेंज इन कॉन्शियसनेस. इट्स आवर मेंटेलिटी, यू कैन से वे ऑफ थिंकिंग इन अ वेरी कॉमन वे. थॉट प्रोसेस, हमारी डिज़ायर्स, उस हिसाब से हमारी डिज़ायर्स, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी एंग्जाइटी सब बदलेंगे विथ कॉन्शियसनेस. ठीक है, क्लियर है? ओके. सो यस, तो हम चाहते हैं कि अब कैसे अच्छे ढंग से हम जप कर सकते हैं, और इसमें कुछ पढ़ेंगे प्लीज़. आई लाइक टू रीड. Chanting japa is an essential process given by all the great आचार्यस for the purification of the heart. हाँ, तो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए सभी आचार्यों ने इसी चैंटिंग का प्रोसेस बताया है. या In this age, the process of chanting the Hare Krishna Mahamantra is the only method by which to cleanse the sinful mind. When the mind is completely cleansed of all sinful reactions, one can then understand his duty in the human form of life. या ओके, फिर हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है. Therefore, chanting at least the prescribed 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra daily without fail is an absolute must for every serious devotee. ओके, तो आप में से कितने लोग सीरियस डिवोटी बनना चाहते हैं? पक्का आप नहीं बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं सीरियस डिवोटी? जोर से बोलिए हरि बोल. कुछ लोग आधा खात करें, हाफ सीरियस या फुल सीरियस. सो फुल सीरियस बनना है तो मिनिमम कितने राउंड हमें चैंट करने चाहिए? 16. घबराने की बात नहीं है. जब हम शुरू में आते हैं हमें लगता है 16 राउंड्स कैसे करेंगे, अभी तो हम 1-2 माला करते हैं. डोंट वरी, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग. धीरे 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 हरिनाम में इतना मीठा है, इतना मधुर है कि आपको इतना टेस्ट आएगा. धीरे धीरे आप खुद माला बढ़ाएंगे. 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, 8 करेंगे, बट करते रहिए. ओके, या यस प्लीज. Thus, a devotee who sincerely and regularly chants his round every day, avoiding offences, will make quick progress in the Krishna consciousness. तो उसकी कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी से हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है. श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे उस समय हिप्पी कल्चर था. 1965 में अमेरिका वियतनाम वार चल रहा था, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ज़बरदस्ती यंगस्टर्स को आर्मी में ड्राफ्ट कर रही थी. तो जितने भी यंगस्टर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के प्रति रिबेल कर दिया. वो सड़कों पे आ गए, अच्छे अच्छे घर के लड़के लड़कियां यंगस्टर्स, और ड्रग्स लेने लगे, LSD लेने लगे, नहाते धोते नहीं थे, उल्टे सीधे कपड़े डालते थे. तो वो पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए थे. लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके पास गए, उनके साथ रहे, उनको अपने हाथ का बनाया प्रसाद खिलाया, उनको हरिनाम करवाया, उनकी चेतना तुरंत शुद्ध हो गई और वो हिप्पी से क्या बन गए? हैप्पी बन गए. या ओके ओके, अब हम या पढ़िए प्लीज. When we chant the holy name, we are coming in contact with the Supreme Lord, Shri Krishna, because Krishna is not different from his name. और We should always remember that if we can keep ourselves always in the company with Krishna, we shall attain all perfection. yes, if we always chant the holy name, अपने लाइफ को इस ढंग से ढालें. जब हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी करें, करते रहिए. उसके बाद जैसे हमें मौका मिले हम क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. सबसे अच्छी बात क्या है? इसको किसी भी स्थान पे कर सकते हैं. इफ़ यू आर टेकिंग बाथ यू कैन चैंट, इफ यू आर ड्राइविंग यू कैन चैंट, बट व्हेन यू आर चैंटिंग ऑन द बीट्स तब इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए. सो विल कम टू दैट पॉइंट. ओके, सो कई बारी चैंटिंग जो है हम ध्यानपूर्वक नहीं कर पाते. कल प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे थे अनिल जी कि हम मन हमारा बहुत भटकता है जब करते समय. तो जब करते समय हम 3 प्रकार से इनअटेंशन रखते हैं. आपने भी बोला था. थोड़ी देर के बाद करेंगे, सब आती नहीं फिर तब वो चर्चा करते हैं. सो 3 लेवल के इनअटेंशंस होते हैं. फर्स्ट होता है अपैथी, यानी कि औदासीन्य, यानी कि हम जब कर रहे हैं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा. जस्ट
वांट टू फिनिश इट, ख़त्म हो जाए, हरे कृष्णा ख़त्म करो यार। अपैथी, नो इंटरेस्ट, नो टेस्ट, टोटल उदासीन। ओके, ये होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज बहुत सी मटेरियल अटैचमेंट्स हैं। ओके, और हरिनाम के जप करते समय अपना हृदय उसमें नहीं डालते, एज ए फॉर्मेलिटी। मैं गया था वाड़ा में, जीव में, सबसे बोला हरि नाम लेना चाहिए, मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया था। अब प्रॉमिस कर दिया कर लेता हूँ, है ना। निपटा रहा हूँ किसी ढंग से। मन खुश है तो कर लेंगे, हम खुश हैं तो भगवान को खुश करेंगे, हम खुश नहीं है तो भगवान को खुश नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा है। तो ये भगवान, ये होता है पहला। दूसरा होता है जड़िया, लेजीनेस। जैसे जब शुरू करते हैं क्या होता है? नींद आ जाती है ना। किसी को भी इंसोम्निया हो, उसको बोलो कोई बात नहीं, सबसे अच्छी पक्की दवाई माला में हाथ डालते ही नींद आ जाती है। ओके, हमारे एक भक्त आते थे पंजाबी बाग में, रोज़ 11 सवा 11 के बीच में आते थे, गाड़ी से उतरते थे, बहुत चमकता हुआ फीडबैक होता था उनका। मैं उनको रोज़ देखता था, मैंने उनको एक बार पकड़ लिया। मैं थैंक यू वेरी मच, आप डेली आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आप आते हैं, वेरी गुड, इतने सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, सो आपका माला फीडबैक बहुत सुंदर है, कितनी माला आप कर लेते हैं? कहते हैं बस ठाकुर जी की बहुत कृपा है। मैं फिर भी बताइए तो सही। कहते जैसे माला में हाथ डालता हूँ इतनी सुंदर नींद आती है, बस वहीं खो जाता हूँ। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, किसी स्टेज पे हैं। तो चैंटिंग करते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है हम रात को कम सोए हैं, नहीं बिल्कुल पूरा सो के आराम से उठते हैं, तब भी हाथ में बीबे में हाथ डालते नींद आती है। या फिर वे चैंट विद ए वेरी डल माइंड, बार बार उबासी ले रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कब ख़त्म होगी, ये 108 हैं कि 1008 हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। और तीसरा है विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन। उदासीन्य में तो क्या है, जब द हार्ट इज़ टोटली उदासीन, हम ऊपर से तो जप कर रहे हैं, अंदर से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। विक्षेप में तो क्या है कि इधर उधर देख रहे हैं, परेशान हैं, टोटली डिस्ट्रैक्टेड, साथ में मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, साथ में कुछ भी कर रहे हैं, वी आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड इन चैंटिंग। सो वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। मन तरह तरह की चीज़ों में भागता है, पुराने पुराने दोस्त याद आएंगे, पुराने पुराने इंसिडेंट्स याद आएंगे। माइंड बोलेगा बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, नोट कर लो फटाफट, क्या बेवकूफ़ इतना जप करो, पहले वो काम करो। तरह तरह के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चलता रहेगा। हाँ, पूरे दिन की प्लानिंग चलती रहेगी। अभी मैं जब कर लूँ, फिर ये मीटिंग करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज़ आएंगे। जब ख़त्म होगा कोई आइडिया नहीं है, सब गायब। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सबके साथ होता है। तो ये 3 प्रकार के इनअटेंशंस हैं। एक तो उदासीन, कोई हमारे वी डोंट पुट आवर हार्ट इनटू इट। एक है जड़िया, लेजीनेस, नींद आती है। और एक है विक्षेप, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ओके, अब इसके कारण क्या होता है, जो हरिनाम का जो असली स्वीटनेस है उसको हम रियलाइज नहीं कर पाते। ओके, और जो हमारे हृदय की सफाई है वो इतनी स्पीड से नहीं होती, तीव्र गति से नहीं होती। और फिर काफ़ी साल ऐसा करते रहेंगे तो हमारा फिर फेथ शेक होना शुरू हो जाता है। कितने सालों से मैं जब कर रहा हूँ, मेरे हार्ट क्लीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये 3 चीज़ों में हम इनअटेंटिव रहते हैं। तो अब हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि कैसे हम हमेशा अटेंटिव चैंटिंग कर सकते हैं। तो अटेंटिव चैंटिंग के लिए हम आपको 5P फार्मूला बताएंगे। एक्चुअली इट्स ए वेरी बिग टॉपिक, लेकिन आपको अभी एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। आगे आने वाले सेशंस में और टाइम में आपको और हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी अपने आप में बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो 5 P's हैं। ओके, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट P है प्लेस। किस स्थान पे हम जप करते हैं? किस स्थान में जप करना चाहिए? शांत स्थान हो, और टेंपल हो, घर में इन फ्रंट ऑफ डीटीज़ के सामने कर सकते हैं। आपके कितने घरों में तुलसी महारानी जी हैं? हाँ, तुलसी महारानी के सामने जप कीजिए और भक्तों के साथ जप कीजिए। अगर हफ्ते में एक बार हमसे आप मंदिर में आके जप करेंगे, आप लोगों ने यहाँ जप किया, कैसा लगा आपको यहाँ जप करके सबके बीच में? कितने लोगों का एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था? कोई शेयर करना चाहेगा?
घर में भी जप करते हैं और यहाँ मंदिर में जप किया, कुछ कैसा लगा एक्सपीरियंस? कोई डिफरेंस लगा? कौन शेयर करना चाहेगा? कोई डिफरेंस नहीं लगा भक्तों के साथ? यस, क्योंकि मंदिर में हमेशा हरि नाम होता रहता है, वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव रहती हैं, तो वो स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमने कोटा फिक्स किया है उसको तो बड़े अच्छे स्थान पे करना चाहिए। वैसे भगवान के नाम के जप में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। एक बारी हनुमान जी की लीला याद आई। नारद मुनि जी एक जगह के भय, तो नारद मुनि एक व्यक्ति को प्रचार कर रहे थे, भाई कभी तो हरि नाम ले लिया करो। तो नारद मुनि जी उस व्यक्ति को प्रचार कर रहे थे, हरि नाम ले लो भाई। वो कह रहे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो नारद मुनि ने बोला एक स्थान पे तो आपके पास टाइम होता है। बोले क्या? बोले जब आप टॉयलेट में जाते हो। बोले हाँ ये तो आइडिया अच्छा है। बोले टॉयलेट में हरि नाम भगवान का नाम ले लिया करो, ये कर लूँगा। तो उस दिन वो टॉयलेट में गया और भगवान का नाम ले रहा था, राम 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 बोल रहा था। अब जहाँ भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी आकर्षित हो जाते हैं। हनुमान जी जा रहे थे, बोले कौन मेरे प्रभु का नाम ले रहा है? भाग के आए, उसके घर में गए, एक कमरे में देखा कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मालूम चला अंदर टॉयलेट में नाम ले रहा है। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया, टॉयलेट में मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, इसकी ये हिम्मत। तो जैसे वो बाहर निकला, हनुमान जी ने गदा से उसका आक्रमण कर दिया, बेचारा उसके मुंह पर लग गई। हनुमान जी तुरंत गए राम को रिपोर्ट करने के लिए, देखिए प्रभु आपका नाम वो टॉयलेट में ले रहा है ना। वहाँ पहुँचा तो भगवान राम मुँह पकड़ के बैठे थे ऐसे। बोले क्या आ गया प्रभु? बोले आपने ही मारा है मुझे। तो बोला गलती होगी। यानी कि भगवान ये दिखा रहे हैं कि मेरा नाम कहीं भी स्थान पे लिया जा सकता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और भगवान का नाम उस स्थान को शुद्ध कर देता है। इसी ढंग से जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, वो शौचालय में जा रहे थे, उन्होंने अपनी जीभ पकड़ ली। बाहर एक छोटा बच्चा बैठा था 5 साल का। बोले जीभ क्यों पकड़ी हुई है? बोले हरि नाम, मेरी जीभ को आदत पड़ गई है, हमेशा हरि नाम लेती रहती है, तो मैं शौचालय में जा रहा हूँ, गंदा स्थान है, ये पवित्र नाम वहाँ कैसे लूँगा? तो छोटा सा बालक था, उसका नाम था गोपाल। उसने बोला अरे भाई सोचो, क्या गारंटी है कि शौचालय में मृत्यु नहीं होगी? गारंटी है क्या कोई? ऐसा नहीं है कि आप शौचालय में हैं तो यमदूत बाहर वेट करेंगे, बाहर आएंगे तब पकड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो व्यक्ति ने बोले तो बड़े काम की बात बोली। जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को मालूम चली तो महाप्रभु बहुत प्रभावित हुए। बोले इतना अच्छा सिद्धांत इस बच्चे ने दिया, आज से इस बच्चे का नाम हो गया गोपाल गुरु, तो वो बहुत बड़े महात्मा बने। तो यानी कि हरि नाम किसी भी स्थान पे लिया जा सकता है। फिर भी हम प्रयास करें कि जो हमने कोटा फिक्स किया है वो स्थान कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जो हमें माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दे। हम जब करते थे देखें यार ये तो बिल्डिंग में गड़बड़ हो रही, इसको ठीक कराना है, इसको भी ठीक कराना है। नहीं नहीं, जहाँ हम फोकस्ड हो सकें, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, राइट। और सबसे तरीका उस स्थान पे हो जहाँ हम स्मार्टफोन को दूर रखें। ये अगर आपने साथ में रख लिया, थोड़ा सा घंटी बजी फिर आप उठा के देखेंगे या वेट करते रहेंगे वो टिक हुआ नहीं हुआ, मैसेज आया नहीं आया, तो फिर हम ध्यान से कैसे जप कर पाएंगे? एग्रीड? तो एटलीस्ट हाँ, कितने लोग मानते हैं कि स्मार्टफोन हमारे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है ना? तो एटलीस्ट आपने जो माला का कोटा फिक्स किया है उस कोटा को करते हुए स्मार्टफोन से दूर रहिए प्लीज़। एक जब को हमने ठीक कर लिया ना, इफ़ यू कैन गेट दिस वन थिंग राइट देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। क्या बोलिए? इफ़ वी गेट वन थिंग राइट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इफ़ वी गेट वन थिंग राइट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जोर से बोलिए, इफ़ वी गेट, अभी भी नहीं बोल रहे आप। इफ़ वी गेट वन थिंग राइट, इफ़ वी गेट वन थिंग राइट एवरीथिंग। What is that one thing? Chanting the japa. Please take it seriously. इस चीज़ को हमने ठीक कर लिया, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब सुबह सुबह ये ठीक कर लेते हैं, our consciousness is fine tuned, हमें भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं कि हर तरह की परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। और इसको हमने गलत कर लिया, एवरीथिंग विल बी टॉपसी टर्वी, सब उलट पुलट हो जाएगा। हम सही ढंग से, सही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे।
इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम इज टू चैंट द होली नेम वेरी वेरी अटेंटिवली। तो इसलिए इसको दूर रखो, बाद में काम आएगा। ये होली नेम इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड के साथ है तो इसकी क्या ज़रूरत है। अगर आप किसी अपने अच्छे दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते करें हाँ यस अंशुल, हाँ बोलो क्या बात है, ठीक है हाँ ओके, ऐसे बात कर रहे हो, इनको अच्छा लगेगा? बोले कैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो भाई, इतने बड़ी इंसल्ट कर रहे हो। तो इसीलिए हरिनाम एक व्यक्ति हैं, उनको पूरा अटेंशन देना है। अगर आपसे किसी व्यक्ति की लड़ाई हो गई है, उसके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं, आप उनसे रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसे कैसे बात करनी चाहिए? बड़ा सेंसिटिव होकर बात करनी चाहिए, बड़े ध्यान से बात करना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे तो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकते हैं? नहीं होंगे। तो इसीलिए प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मंदिर में तुलसी महारानी के सामने बैठ के अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, स्मार्टफोन को अपने चार्जिंग में लगाओ, बोलो भैया तुम भी चार्ज हो जाओ, मैं भी चार्ज हो जाऊँ वही बोथ ऑन चार्जिंग, ओके। तो मुझे भी चार्ज होने दो, आप भी चार्ज हो जाओ। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू चार्ज द स्मार्टफोन, ओके। दूर रहिए, राइट। और बाकी जो अपनी कोटा के अलावा आपको जप करना है, आप चलते फिरते मेट्रो में, गाड़ी में, कहीं भी करते रहिए। बट व्हेन यू आर चैंटिंग द फिक्स्ड नंबर ऑफ कोटा, इट शुड बी ए वेरी सेक्रेड प्लेस। क्लियर? अदर इज पोस्चर। जब हम जप करते हैं तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अटेंशन एंड रिलैक्स, ओके। जप करना है, माया के साथ लड़ाई लड़ना है। दिस इज आवर स्टेन गन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारी स्टेन गन है। तो माया के साथ हमने युद्ध लड़ना है। अगर कोई सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है, ही इज सपोज टू बी अटेंटिव और इन रिलैक्स पोजीशन, अटेंटिव पोजीशन। तो अटेंटिव पोजीशन मीन्स कमर सीधी, ओके, बैक स्ट्रेट बैक, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हमारे मंदिर में विनोद शर्मा जी आते थे पहले, काफ़ी समय पहले आते थे, और प्रभु जी इतनी एज में भी ऐसे बैठते थे, बिल्कुल सीधी कमर करके बैठते थे और हमारे साथ बैठ के जप करते थे। हमें भी वो याद है टाइम, है ना। अभी प्रभु जी का स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, लेकिन आते थे मंदिर में, सीधी कमर करके बैठते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंटिव पोस्चर मीन्स अटेंटिव माइंड, नो। आप देखिए हमारे पोस्चर का हमारे माइंड सेट पे बहुत फर्क पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जब चलते थे तो ऐसे चलते थे, सर ऊपर करके। किसने बोला वाई प्रभुपाद यू वॉक लाइक दिस? प्रभु सेज आवर फिलॉसफी इज वेरी हाई। बिल्कुल, आपकी चाल में, आपके पोस्चर में कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, है ना। और आपका अटेंटिव पोस्चर होगा तो माइंड अटेंटिव होगा, राइट। एक गांव में एक लड़का था, उसको डिप्रेशन हो गया, तो एक साधु के पास जाता था। साधु उसको बहुत उक्तियाँ सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, उसको इंस्पायर करते थे, एंथ्यूज करते थे, लेकिन वो लड़का यूँ ही रहता था डिप्रेस्ड। एक दिन लड़का फिर से आया आश्रम में, तो साधु जी यूँ बैठे हुए हैं। बोले महात्मा जी आपको भी डिप्रेशन हो गया क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं देख रहा था मैं भी ऐसे बैठूंगा तो डिप्रेशन हो जाएगा। तो सीधा जब हम चैंटिंग करें तो कैसे बैठना चाहिए? बैठने का प्रयास कीजिए प्लीज़, सीधा बैठिए, जस्ट स्ट्रेट बैक स्ट्रेट। अगर हम कुर्सी पे ही बैठे हैं तब भी स्ट्रेट, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना। इट्स गुड फॉर आवर स्पाइनल कॉर्ड। So when we sit like this and chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, धीरे धीरे क्या होता है, हम यूँ होते हैं, यूँ होते हैं, यूँ होते हैं, यूँ होते हैं ना, महाविष्णु जी के पोज में आ जाते हैं। तो हमें ऐसे बैठने का प्रयास करना चाहिए। और बीच में हम जब देखें हमारी पीठ यूँ हो रही है, अगेन वी शुड स्ट्रेटन इट अप, ओके, कमर सीधी करके। पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, ओके। कुछ लोग ऐसे जप करते हैं, ऐसे जप करते हुए हाथ थक जाए तो यूँ भी रख सकते हैं। आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। आंखें खुली रखने का नुकसान क्या होता है? क्या होगा नुकसान आंखें खुली रखी हैं तो? देखेंगे, याद आएंगी। आंखें बंद करने का क्या नुकसान होता है? नींद आ जाएगी। तो क्या करें? अगर आंखें खुली रखनी है तो तुलसी महारानी को देखते रहें, या भगवान का सुंदर विग्रह हो उसको सामने देखकर बात करते रहें, या फिर हरे कृष्ण का एक कार्ड रख के उसको पढ़ें। और आंखें बंद करनी है, कुछ समय के बाद खोलने, नींद नहीं आने दें। या फिर हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड ऐसा रख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पहला पी क्या था? प्लेस। सेकंड इज पोस्चर।
Third is pronunciation. Pronunciation is very important. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. बोलिए Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ये जो pronunciation है, it should be loud, clear, distinct. Distinct होना चाहिए एक एक अक्षर, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे जल्दबाजी नहीं दिखानी, फटाफट ख़त्म करना है। एक एक अक्षर क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। और इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत स्लो आज हमने आपको सुबह चैंटिंग कराई, हमने आपको बहुत स्लो चैंटिंग कराई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लेकिन जब आप घर में जाके चैंटिंग करेंगे तो ऐसी नहीं करनी, ये आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कराई गई थी। अगर हम माला पे ऐसी चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड एस्केप कर जाएगा, इतना उसको गैप मिल जाएगा। हरे कृष्णा ऐसे बोलेंगे ना, माइंड भाग जाएगा। तो हमने क्या करना है, कंटिन्यूअस स्ट्रिंग रखनी है। जैसे एक नेकलेस होता है, उसकी बीड्स कंटिन्यूअस स्ट्रिंग होती है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ताकि माइंड एस्केप ना कर सके। कंटिन्यूअस स्ट्रिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। समझ आ रही बात? ओके, हाँ। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हरे कृष्ण की जगह पे जब कंटिन्यूस करते तो हरे कृष्णा हो जाता है, फिर वो हरे कृष्णा तो वो आ की मात्रा तो नहीं आनी चाहिए, बस आ जाती है। हाँ, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा अणा होता है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई चिंता की बात नहीं। ओके, हमने हरे कृष्णा ऐसे नहीं बोलना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, दैट। यस प्रभु, आप पूछ रहे थे। अणा इंग्लिश में ना लिखते हैं, नीचे डॉट लगाते हैं, वो अणा है ना। हम तो हिंदी जानते हैं तो हमें अणा कृष्णा। ओके, और कुछ याद? हाँ हाँ, माता जी कह रही हैं एक माला किया तो बीट को नीचे गया, उसमें थोड़ा ब्रेक आ जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त, अगेन वी स्टार्ट। ओके, सो इट शुड बी कंटिन्यूअस स्ट्रिंग, इट शुड नॉट बी ओवरलैपिंग, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। और साथ में कितने मन के हमने जपने चाहिए? 108। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, 108 की जगह 96 कर लेते हैं, 100 कर लेंगे, टाइम कम है, फटाफट करना है, तो क्या होता है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आधा मंत्र एक बीट पे, आधा मंत्र दूसरे बीट पे, ऐसा हो जाता है। सो वी शुड कंटिन्यूसली चैंट। ओके, अब इस दो चीज़ों का हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप सिट स्ट्रेट, थोड़ी देर के लिए सिट स्ट्रेट और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, कंटिन्यूस स्ट्रिंग। ओके, और जो हम बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करेंगे, बोलेंगे सुनेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, आप सुनेंगे, जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो हम मालूम चलेगा हम नहीं सुनते हैं जब हम सुनने का प्रयास करेंगे तो मालूम चलेगा माइंड इधर उधर भाग रहा है, तो उसको पकड़ के लाना है। तो अभी एक स्मॉल एक्सरसाइज, आप सीधा बैठिए और हम पोस्चर ठीक है, प्लेस भी ठीक है, और हम कंटिन्यूस स्ट्रिंग में बोलेंगे, राइट? अपनी अपनी स्पीड से बोलेंगे, हर एक का अपना कैपेसिटी है, लेकिन क्लियर होना चाहिए, राइट? और सॉफ्टली बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है, जस्ट टू गिव एन एक्सपीरियंस। ओके, सबका स्पीड अलग अलग हो सकता है, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा स्पीड और फास्ट हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लेकिन अपने आप को फोर्स नहीं करना स्पीड बढ़ाने के लिए, इट्स नेचुरल आपका जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, अटेंशन लेवल बढ़ता जाएगा, स्पीड तेज होती जाएगी। बट इस स्पीड से आप करेंगे तो आपकी एक माला 7.5-8 मिनट में हो जाएगी। ओके, और एक्सपीरियंस के साथ 6-6.5 मिनट में होना शुरू हो जाएगी, और एक्सपीरियंस करते हैं तो कहीं भी 5-5.5 मिनट में होती है, लेकिन स्टार्टिंग में 7.5 से 8 मिनट लगते हैं। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्लियर? यस मतलब माइक Hare Krishna. Prabhuji, I experienced this morning that when you're chanting with other devotees, sometimes their volume and their sincerity is higher. So while you're chanting, you can hear them more, and your concentration goes to देयर their chanting. ये अच्छा प्रश्न है। ये भक्तों के बीच में जब करते हैं कुछ भक्त ज़्यादा उत्साहित होते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, हम अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते। तो ऐसे उत्साही भक्तों को एक जगह अलग बैठा देना चाहिए, 4-5 उत्साही भक्त आपस में बैठ के हरे कृष्णा करें तो और बाकी भक्त उनको थोड़ा बोल देना चाहिए, प्रभु जी माता जी प्लीज़, या फिर आप खुद थोड़ा अलग जाके बैठ जाए, है ना। होता है कई बार बैठते हैं, उनको थोड़ा शांत करना पड़ता है, थोड़ा सा भी शांत हो जाएगी, हो जाता है। ठीक है, यस प्रभु जी। लक्ष्य प्रभु जी, जैसे आपने स्पीड का बताया, तो मतलब कई बार ये ऐसा होता है कि स्पीड जैसे फास्ट, मतलब अगर थोड़ा टाइम बाद बट वो सुनाई फिर इतना ज़्यादा एक अक्षर आप नहीं सुन पाते, जैसे 6-6.5 मिनट का करते हैं तो उसमें एक डिस्टिंक्टली एक साउंड नहीं सुन पाते। तो जैसे आपने बताया थोड़ा टाइम बाद स्पीड फास्ट हो जाती है, तो अगर मतलब फास्ट नहीं चाहिए और डिस्टिंक्टली सुनने का थोड़ा रेलिश मतलब अच्छे सुनने तो उसका प्रॉब्लम नहीं, हमें तो सुनना है, अपने आप ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको फास्ट करनी है, गियर चेंज करना है, आप सुनने का प्रयास कीजिए बस। हो सकता है लंबे समय तक आपका 7.5 मिनट ही चले, कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉट एन ऑफेंस, है ना। हमारे जो केशवमाल प्रभु वो 4.5 मिनट में कर लेते हैं, इनके ऊपर विशेष कृपा है 3-4.5 कभी 3.5 मिनट में, कभी 4 मिनट में हो जाते हैं। एक बार हम दोनों ट्रेन से इकट्ठे आ रहे थे, तो मेरी 16 माला हुई, उनकी 32 माला हुई, बिल्कुल हाफ टाइम फिर मैंने गया गुरु महाराज के पास गया, महाराज इनको आदेश दीजिए, इनका 16 माला कम से कम नहीं 32 माला कम से कम करें, टाइम उतना ही लगता है इनको तो मैं इनकी नकल मारने का प्रयास करूं तो मेरे से नहीं होगी, तो मैंने कोशिश की, मैं नहीं कर सकता भाई, आप अपना है मैं अपना, तो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ मुझे जैसे कि हम सुनने की जब कोशिश करते हैं तो हमें जो टेक्स्टिंग की एक वर्ड शब्द सुनना है, तो हम जब स्पेशल कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली एक्शन निकल जाता है, मतलब पूरा मंत्र निकल जाता है, हम कुछ ही अक्षर सुन पाते हैं, तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है कि 16 अक्षर हम बोल भी रहे हैं और उसी टाइम साइमल्टेनियसली हम 16 अक्षरों को डिस्टिंक्टली सुन भी पाएंगे। या उसका टेक्निक बताएंगे, विल डू दैट। ठीक है, अभी इस पे टेक्निक पे आएंगे, राइट? ओके, यस माता जी। प्रभु जी, so sometimes जब आप प्रभुपाद जी का गाते हैं चैंटिंग साथ में, तो उसमें ऐसा होता है कि क्योंकि उसमें मधुरता बहुत होती है तो कंसंट्रेशन उसमें चला जाता है। तो प्रभुपाद का चैंटिंग लगाना है बैकग्राउंड में, बट मोर हम अपना सुनना है। ओके, प्रभुपाद बोलते थे मुख से सुनना है,
मतलब कि मुख से बोलना है और कानों से सुनना है, ओके, एंड थ्रू आवर ईयर्स इट विल एंटर आवर हार्ट, राइट। तो सुनने का प्रयास करना है, ऐसा नहीं कि सुनाई दे रहा है, सुनने का प्रयास करना है। वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू हियर, राइट। चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट, बीइंग प्रेजेंट, सबसे बड़ा टफ है ये, ओके, बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। क्योंकि जो माइंड है या तो भविष्य में जाता है या पास्ट में जाता है ना। पुराने दोस्त याद आएंगे या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करते रहेंगे, ये करूँगा फिर ये कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, बदल दूंगा सबको उसकी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की, बस जब ख़त्म करें तो पूरी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं, सब प्लानिंग चल रहा है, ओके। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा माइंड रजोगुण में आ जाता है, इट वर्क्स वेरी फास्ट। माइंड की तुलना एक छोटे बच्चे से की गई है ना। वो खाली बच्चा ही नहीं है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवृद्धम तस्याम निग्रहम है वायु सुदुष्करम। अर्जुन गीता में बताते हैं कि मन जो है इतना रेस्टलेस है, इतना चंचल है, उसकी तुलना एक बच्चे से की गई है। ऐसा बच्चा है ऑब्स्टिनेट, बहुत ज़िद्दी है और पागल है और बहुत बलवान है, ऐसे बच्चे को रोकना बहुत मुश्किल है। अर्जुन बोलता है मैं तूफान को रोक सकता हूँ, मन को नहीं रोक सकता। मन का स्वभाव है भागना, मन भागेगा ही भागेगा। छोटा बच्चा अगर वो स्वस्थ है, कभी शांत बैठ सकता है, वो भागेगा ही भागेगा, तो मन जरूर भागेगा। मन का भागना गलत नहीं है, हम मन को वापस पकड़ के नहीं ला रहे, वो गलत है। एक माँ बच्चा भागते भागते नाली में गिर रहा है, उसकी गलती नहीं है, माँ उसको पकड़ के वापस नहीं ला रही, उसकी गलती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। माइंड भाग रहा है, उसको पकड़ के लाएंगे, फिर भाग रहा है, उसको पकड़ के लाएंगे, फिर भाग रहा है, उसको पकड़ के लाएंगे। दिस इज द एक्सरसाइज वी हैव टू डू। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द सटल बॉडी। माइंड को ट्रेन करना है, जहाँ माइंड डिस्ट्रैक्ट हो उसको वापस पकड़ के लाओ, फिर डिस्ट्रैक्ट हो पकड़ के लाओ, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, माइंड यूज्ड टू हो जाएगा, राइट। सो हमने माइंड को वापस पकड़ के लाना है। जैसे आप देखिए, आप रात को अकेले बैठे हैं घर में, घंटी बजती है और आप देखते हैं जैसे दरवाज़ा खोलते हैं सामने कुछ टेररिस्ट खड़े हैं स्टेन गन लेके, आपका पहला रिस्पांस क्या होगा, ठक से दरवाज़ा बंद कर देंगे, राइट। वो ना करके आप उनको बोलिए आइए प्लीज़ वेलकम कीजिए, उनको बिठाएंगे सोफ़ा पे, बोले क्या लेंगे, मैंगो शेक लेंगे, चीकू शेक लेंगे, बताइए क्या लेंगे। ऊपर से पुलिस आ जाए तो पुलिस किसको अरेस्ट करेगी, उनको भी अरेस्ट करेगी, हमें भी अरेस्ट करेगी, साथ में मिले हुए हैं, राइट। तो अगर हमारे माइंड में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं और उनके साथ हम बह रहे हैं, तो हमारे प्रति हम ये अपराध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन वो उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, हम उनको वहीं शट कर रहे हैं, दैट शुड वी डू। कि जो उल्टे सीधे विचार हैं उनके साथ भागना नहीं है, मन को वापस पकड़ के लाना है कि हरि नाम को सुनो, राइट। कैसे करना है वो, तो घबराइए मत। अगर आप अपने माइंड को बोलेंगे मैंने 4 माला 8 माला 16 माला ध्यान पूर्वक करनी है, माइंड बोलेगा करके दिखा, माइंड करने नहीं देगा। माइंड ऑलवेज रिबेल्स। हम जो भी प्लान करते हैं माइंड उसको रिबेल करेगा। तो फिर माइंड को हमने चीट करना है, माइंड को हमने ट्रेन करना है। कैसे, माइंड को बोलेंगे कोई 16 माला नहीं करनी, 4 8 माला नहीं करनी, बस क्या करना है, इस मंत्र को सुनना है, बस जस्ट हियर दिस मंत्र। क्या, जस्ट हियर दिस मंत्र। माइंड को छोटा टारगेट दे दो, बड़ा टारगेट मत दो। बड़ा टारगेट देगा तो माइंड रिबेल करेगा, छोटा टारगेट दे दो। 16 वाला नहीं करनी, एक मंत्र को सुनना है बस, जस्ट हियर दिस मंत्र, जस्ट हियर दिस मंत्र, जस्ट हियर दिस मंत्र, ओके। जैसे पुराने टाइम में हम देखते थे, छोटे बच्चे को माता ने कुछ खिलानी है, खीर खिलानी है, तो बहुत बड़ा टास्क होता था। बच्चा भागता रहता था, माता उसके पीछे पीछे भागती थी और उसको पकड़ के बोलती थी बस बेटा 1 चम्मच 1 चम्मच 1 चम्मच, ऐसे होता था ना। वो 1 चम्मच खाता था, फूंक करके बाहर निकाल देता, फिर भी माता कहती नहीं 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 1 चम्मच 1 चम्मच। जब वो 1 चम्मच खा लेता था उसको टेस्ट आता था, फिर वो पूरी कटोरी खाली कर देता था, है ना। आजकल तो माता जी खाली यूट्यूब ऑन कर देती है, बच्चे का मुँह खुला ही रहता है, फट फट सब खा देती है तो आजकल इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बच्चे को बताना पड़ता था। 1 चम्मच टेस्ट कर लिया, एक हरि नाम हमारे माइंड को टच कर गया, हरि नाम इतना स्वीट है, माइंड को आदत पड़ जाएगी, ओके। सो वी हैव टू मेक द माइंड आवर कॉन्शियसनेस टच द होली नेम, एम्ब्रेस द होली नेम जस्ट वंस। बोले जस्ट इसको सुन लो, जस्ट इसको सुन लो, जस्ट इसको सुन लो। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपको पता, माइंड को पता भी नहीं चलेगा, हमारी मारा पूरी हो जाएगी।
समझ आई बात? क्या बोलना है हमने? जस्ट हियर। तो ऑन एवरी बीट हम एक संकल्प ले रहे हैं, इंटरनली संकल्प ले रहे हैं, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, बस। तो क्या होगा, जो माइंड की टेंडेंसी है भागने की पास्ट में और फ्यूचर में, उस टेंडेंसी को हम कर्ब कर रहे हैं। हमने ये बोलना है जस्ट हियर दिस, जस्ट हियर दिस, जस्ट हियर दिस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट पे आए जस्ट हियर दिस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रुकना नहीं है, बोलना नहीं है, जस्ट हियर दिस, अंदर ही माइंड को डिक्टेट करना है। तो माइंड अगर भागेगा भी, उसको है जस्ट हियर दिस, जस्ट हियर दिस, जस्ट हियर दिस, तो माइंड वापस आ जाएगा। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? हाँ, चैतन्य प्रभु। तो प्रभु जी जब कभी कुछ आशिका में जब स्टार्ट की जब बात, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे करते करते। अभी आज का एक्सपीरियंस ये है कि एक्सपीरियंस वॉइड होता है, बिल्कुल ब्लैंक सा होता है। तो कई बार लगता है ये सही है नहीं है, कैसे होती है, वॉइड होना। या विल कम टू दैट, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। इट शुड नॉट बी ब्लैंक, वी शुड हैव समथिंग, विल डू नेक्स्ट थिंग। ओके, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। सबके पास माला है? कितने लोग माला लेकर नहीं आए? तो उनको माला दे दीजिए प्लीज़, जिनके पास माला नहीं है। फटाफट फटाफट माला दीजिए बस, जिनके पास माला नहीं है। कहाँ हैं बीट्स? बीट्स दो, खाली बीट बैक नहीं कभी बीट्स। ओके, तो मतलब हर माला को बोलना चाहिए? हर माला की स्टार्टिंग में, हाँ, फिर एंड में भी। ओके, सबके पास बीड्स आ गए? बीड्स हैं सबके पास? ओके, सो नंबर 1 वी हैव ए गुड प्लेस। नंबर 2 posture, straight please, testing time. Okay, sit straight. Number 3 pronunciation, and number 4 being present. So being present means we'll hear one mantra at a time, just the present mantra, just the present mantra, just the present mantra. इसमें मन भागेगा भी, कोई बात नहीं है, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, बस इसको सुनना है। जो मैं बोल रहा हूँ इस समय इस मंत्र को सुनना है। ठीक है, एवरीवन इज रेडी? तो सीधा बैठेंगे हम। एक और वहाँ भी दीजिए, या ओके, शुरू करें। राइट, ओके, ऑल द बेस्ट। सीधा बैठिए प्लीज़। ओके, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक थोड़ा सा यही है पॉइंट, जैसे हम लोग सब कर रहे हैं तो हमें और भी चैटिंग की वॉइस आ रही है, राइट? तो उसमें क्या ऐसा भी हम दिस इज ओके कि अगर हम एक फिंगर से एक काम को करें तो हमें वो उसमें हमारी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा बनती है, उसमें माइंड भी कम भागा। एज कंपैरिजन दोनों कान खुलेंगे, अगर एक कान को बंद करके अगर हम चैटिंग करें, दैट इज वंडरफुल। वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था। गुड, कर सकते हैं। कुछ लोग ईयर प्लग्स यूज़ करते हैं कि हम अपने ही सुन सकें, कर सकते हैं। और कुछ किसी का एक्सपीरियंस?
हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन जब हम चैंटिंग करते समय सिर्फ अपने ही शब्दों को सुनते हैं तो उसमें ध्यान भी ज़्यादा लगता है और फिर साइड में जो भी मंत्र किसी और के चल रहे हैं तो उस पर ध्यान कम जाता है। फिर भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं ऐसे। अनिल जी बोलिए। जब मैं माला की तो एक दो बार जैसे नींद आग बंद करने की कोशिश करें तो नींद की चुके गया था, मतलब डिस्ट्रैक्शन हुआ। और एक मैंने नोटिस किया है कि जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे में वो कई बार ओवरलैप होता है बोलने हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये बहुत क्लैरिटी से नहीं आ रहा। ये मैंने पहले भी नोटिस किया है। गुड। तो पांचवा छठा वर्ड जो है वो ओवरलैप हो रहा है। हाँ, हरे कृष्ण 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 ऐसे तो ठीक है, वो है ही ऐसा, कृष्ण कृष्ण ही है। नहीं आई नो पूरा वर्ड नहीं था, कृष्ण कृष्ण बोल के थोड़ा टाइम चाहिए, तो स्पीड से करते हैं तो वो वर्ड ओवरलैप हो जाता है। कोई बात नहीं, तो आप उसमें थोड़ा रुक जाइए तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हाँ, आदत पड़ जाएगी तो फिर या कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, जितना आपको सूट करता उसमें करिए। यस माता जी को देखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कभी भी ध्यान नहीं लगता, कभी भी। मैं जब भी माला शुरू करके कभी भी, लेकिन आज जैसे मैंने अपने वर्ड सुने हैं तो मेरा कहीं जा रहा है दिमाग पर, अपने वर्ड सुन के तो वापस ला रहे। वेरी गुड, थैंक यू। गुड, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? यस माता जी। प्रभु जी, when I am chanting, I tried this before कि अपनी chanting खुद सुनी because we Maharaj का small lecture. But प्रभु जी, when I concentrate on a figure, on तुलसी महारानी और I concentrate on the deities, तो फिर मेरा ध्यान वहाँ चला जाता है, then my mind starts telling me अरे कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। So then वो अपनी आवाज़। हाँ, तो अगर हम डीटीज़ को भी देख रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है सुनना। Anything which helps us in hearing is favorable. प्रभुपाद ने बोला attentive chanting means 3 things: hearing, hearing, hearing. तो अगर हमें सामने भगवान की फ़ोटो रखने हैं, सुनने में मदद हो रही है, अच्छी बात है। कोई माइंड को कुछ चाहिए तो माइंड उनकी तरफ देखते हुए बोल रहा है, लेकिन सुनने में आसानी हो रही है, तो सुनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये टेक्निक किसी ने अप्लाई की, जस्ट हियर दिस मंत्र, जस्ट हियर दिस मंत्र। यस, लक्ष्य प्रबोधन, इससे कुछ फ़ायदा हुआ आपको? अच्छा, राजेश जी बता रहे थे। What I noticed was that generally when I chant a bit slowly, clearly, and I close my eyes and chant. And I always try to ensure my mind is focused on a picture of the Lord. Yeah. That is it. Okay. So there I have noticed that the mind runs away, but then I focus again on the picture and it comes back. Good. And I keep hearing what I am chanting. Good, good, very nice, thank you. Yes, विशाल। मुझे जैसे बीइंग प्रेजेंट का मुझे सबसे ज़्यादा लगा, मतलब आसपास वालों की तो आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर अंदर जैसे 7, 8, 10 बार तो सही चल रहा था। फिर एकदम ये दिमाग में आ गया, वो महामन पे मैं रिसेप्शन पे बोल के आऊँ कि रूम क्लीनिंग करवानी है, यानी वो रूम क्लीनिंग हुई होगी नहीं हुई होगी। फिर एकदम याद आया कि प्रभु जी ने ये चीज़ बोली थी कि भाई कंसंट्रेशन से करना है। तो इसी से रिलेटेड क्योंकि मैंने एक छोटा सा लेक्चर कहीं सुना था, वो एक स्वामी जी हैं, प्रभु जी हैं, वो मुंबई में, तो उन्होंने कहा था कि जो ये पायलट्स होते हैं इनको ना अपना डेस्टिनेशन, क्योंकि एयर में होता है तो प्रॉपर वो नहीं बताते, मतलब एक लाइन दे देते हैं कि इस लाइन पे आपको करना है। बोले मगर ऊपर टर्बुलेंस इतना ज़्यादा होता है कि हम कभी भी उस लाइन पे चल ही नहीं पाते जो हमें एयर अथॉरिटीज से मिली होती है। मगर हम जैसे ही उस लाइन से हट जाते हैं तो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम उस लाइन के पास आए, फिर उस लाइन पे आते हैं, फिर हट जाते हैं। तो बोले एट द एंड ऑफ द डे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो बोले उन्होंने मतलब ये चीज़ सिखाई थी कि भाई चैंटिंग में आप देख रहे हो, आप उस क्योंकि टर्बुलेंस इतना ज़्यादा है तो उससे तो हटोगे, मगर ट्राई टू फॉलो द लाइन, की बार बार उससे हटके उस लाइन का वही करना है। माइंड तो भटके गया, उसको पकड़ के लाना है। आपको रूम क्लीन करना है, सब याद रहे, बस ब्रिंग इट बैक, फिर भटके फिर ब्रिंग इट बैक, ये करना है। तो जब ये बोले जस्ट हियर दिस मंत्र, जस्ट हियर दिस मंत्र, सो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू ब्रिंग द माइंड बैक, राइट। उसमें हम फोकस जाते हैं, मैं क्यों बैठा हूँ। अगर हम ये नहीं बताएंगे, मैंने संकल्प नहीं लूँगा कि मैंने इसको सुनना है, तो हम भूल जाएंगे हम चैंटिंग क्यों कर रहे हैं, कहीं का कहीं पहुँच जाएंगे। नहीं, बार बार अपने आपको रिमाइंड कर रहे हैं, जस्ट हियर दिस, जस्ट हियर दिस, जस्ट हियर दिस, तो मालूम है इसको सुनना है, इसको सुनना है, इसको सुनना है, तो माइंड भागेगा भी, इसको पकड़ना आसान हो जाएगा, माइंड स्लो हो जाता है इससे। ओके, दैट मैंने पर्सनली चीज़ फील करी, कई बार जब हम घर पे जब करते तो कई बार ना मुंह बहुत थक जाता है, कुछ
मतलब जैसे 1 घंटा हो गया चैंट करते करते, तो मुंह में मतलब मेरे को जॉ में ही, या तो मैं थोड़ा ज़्यादा लाउडली कर रहा हूँ तो जॉ में कई बार पेन होने लगता है, तो मेरे को ये लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ भगवान को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ किसी माता जी कोई शेयर करना चाहते हैं? यस मैम। जब हम जब करते हैं ना तो अपने लिप्स की मूवमेंट को अगर देखते हैं, सुनते हैं, उसकी तरफ ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे से जब हो जाता है। जहाँ भी ध्यान भटक रहा होता है, लेकिन मतलब सुनते तो हैं, लिप्स की मूवमेंट को देखेंगे ना, उस पर ध्यान करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जब हो जाता है। ओके, गुड गुड। या ध्रुव प्रभु। प्रभु जब चैंटिंग कर रहे होते हैं ना तो माला कब शुरू होती है और कब खत्म होती है वो पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि अभी तो शुरू करा था, 4 माला हो भी गई और कुछ हुआ भी नहीं, बस काउंटिंग होती जा रही है। उसमें बोला भी लाउडली, मतलब क्लैरिटी से भी बोला, सब कुछ सुना भी सही, लेकिन फिर भी एक फील नहीं हुआ कि तो आपने टेक्निक लगाई थी अभी? ये प्रभु जी अभी भी मेरी मतलब बहुत जल्दी हो गई मुझे। नहीं नहीं, बट आपने बोला था अपने आप को जस्ट हियर दिस, जस्ट हियर दिस। नहीं, तो हर मनके पे बोलना है, वो भूल जाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। तो इसीलिए आपको बताया था कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टेक्निक, जस्ट हियर दिस, जस्ट हियर दिस, दैट वे। हाँ जब मैं कर रही थी चैंटिंग तो इनिशियली तो आई वाज इन द चैंटिंग ओनली, मैं कर रही थी। आई थिंक 14-15 बीट्स में होंगे तो मेरा माइंड फिर कहीं चला गया। फिर मैंने याद किया कि आपने ऐसा कहा है तो आई रियलाइज कि मेरा माइंड फिर से वापस आया एंड आई एम इन द चैंटिंग। या देखिए, जब हम थोड़े कॉन्शियस होंगे तो हमें मालूम चलेगा कि मैं इनअटेंटिव हो रहा हूँ। जब हम कॉन्शियस ही नहीं है तो पता नहीं चलेगा मैं इनअटेंटिव हूँ, कहीं का कहीं चला जाऊँगा। तो इसलिए जब अपने आप को रिमाइंड कराता रहूँगा, आई हैव टू हियर दिस, आई हैव टू हियर दिस, आई हैव टू हियर दिस, तो मालूम चलेगा माइंड भटक रहा है, उसको मैं पकड़ के ला सकता हूँ, फिर भटक रहा है, फिर पकड़ के ला सकता हूँ। राइट, क्लियर? आगे बढ़ें। आप कुछ कहना चाहते हैं? जिक्र होता है जब कृष्णा का तो उसके जन्मों की बात होती है। वो जो चाहे तो दिन निकलता है, वो जो चाहे तो रात होती है। उसको देखा है मेरी नजरों ने, उसकी तारीफ करूं मगर कैसे, ना जुबान को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। क्या बात है। लेकिन हरिनाम लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे। आप उनको छू भी पाएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द होली नेम। अभी आपने कहा था सीरियस मतलब ये डिवोटी। हाँ, उसके लिए मैं एक बात करता हूँ थोड़ा बाद में, ब्रेक के बाद। बेख्याली में यूं ही इरादा कर लिया और अपने दिल के शौक को हद से ज़्यादा कर लिया। जानते थे दोनों हम इसको निभा सकते नहीं, उसने भी वादा कर लिया तो हमने भी वादा कर लिया। भगवान निभा सकते हैं, चिंता मत कीजिए। ओके, फर्स्ट पी वॉज सेकेंड, पोस्चर, थर्ड, फोर्थ बीइंग प्रेजेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको बार बार मन भटकेगा, उसको बोलना है हियर दिस मंत्र। और एक तरीका है प्रेजेंट रहने का जो बहुत आसान है। आप क्या करिए, पहले हरे पे जोर दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। यानी कि आपको माइंड को जस्ट हियर दिस हरे, अरे पूरे 16 शब्द भी नहीं सुने भाई, एक शब्द सुना, ये तो सुन ले यार, ये तो सुन ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो जब पहले शब्द पर जोर देंगे तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली, इट्स जस्ट लाइक आप नदी में डाइव करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उससे बहुत आसान हो जाता है। फिर हरे से पहले ही बोलते हैं, माइंड को मंत्र के अंदर डाला, बाद में लॉक कर दिया, वो बाहर नहीं जा सकेगा। फिर दोबारा आएगा, फिर हरे कृष्ण। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पीस हो गए। लास्ट पीस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रेयर। हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मतलब क्या है? हरे मतलब कौन बताएगा? हरे मतलब क्या है? हरे, राधा रानी को हरे क्यों कहते हैं?
जिन्होंने हरि को हर लिया। जो हरि को हर ले वो बनती है हारा, लेकिन उनको संबोधित करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं तो हरे कह के कहते हैं, हरे हे राधा रानी, है ना। तो बहुत ही इनफॉर्मल हृदय की पुकार है। जो वैदिक मंत्र होते हैं ओम करके शुरू होते हैं, है ना, पहले ओंकार होता है, समर्पयामि कुछ ऐसे होता है, उसमें एक औपचारिकता होती है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र इसमें औपचारिकता नहीं है, ये माधुर्य नाम है, इसमें मधुरता है, हमारे हृदय के भाव हैं, इमोशंस हैं। हे राधा रानी, हे कृष्णा, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मुझे अपना प्रेम दो, मुझे अपनी सेवा दो, मुझे अपनी शरण दो। तो ये प्रार्थना है, ओके। लेकिन प्रार्थना मीनिंगफुल तब होती है जब प्रार्थना हृदय से निकले। ऊपर से प्रार्थना नहीं चलेगी, हृदय से प्रार्थना निकलनी चाहिए ना। अगर हमारी पुकार हृदय से है तो भगवान जरूर सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमारा हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे होना चाहिए, जस्ट लाइक ए जेन्युइन क्राई ऑफ अ क्राइंग चाइल्ड फॉर हिज मदर। जब छोटा बच्चा होता है उसके वो माँ के साथ कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता नहीं है, वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता, वो खाली एक ही काम कर सकता है, क्या? रो सकता है। उसने अपनी माँ को पुकारना है, रो रो के पुकारेगा, वाह वाह, माँ भाग के आएगी, है ना। और माँ समझ आएगी, माँ भी इतनी एक्सपर्ट हो जाती है, कैसे रो रहा है, भूख लग रही है, कैसे रो रहा है, कोई मच्छर काट रहा है, कैसे रो रहा है, पेट में दर्द हो रही है, माँ समझ आती है, उसके रोने से समझ आती है। इसी ढंग से अगर हम हृदय से भगवान को पुकारेंगे, भगवान निश्चित रूप से हमारे साथ में रहते हैं, राइट। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बदमाश हो जाता है, उसको माँ को बुलाना है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, फिर भी वो जूठी मूठी रोते हैं, मैं। तो माँ तो उसकी माँ है माँ कहती मैं मालूम में जूठा रो रहा है, माँ भी कहती है हाँ आ रही हूँ, वो भी टालती रहती है। बच्चा भी मैं करता रहता है, माँ भी कहती है हाँ हूँ चलता रहता है। तो जैसे ही अचानक बच्चे को करंट लगता है, कोई कील चुभती है, जोर से रोते हैं वाह, तो माँ भाग के आती है। इसी ढंग से आवर चैंटिंग शुड बी फ्रॉम द हार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट वॉज नॉट फ्रॉम द हार्ट, लिप्स से था, हार्ट से बोली, जैसे कल आपने बोला था, हृदय से भगवान को पुकारिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होता क्या है, हम हृदय से क्यों नहीं पुकार पाते भगवान को? हृदय में बहुत कंजेशन है, बहुत कुछ भरा पड़ा है, तरह तरह के इमोशंस हैं। किसी के प्रति खुंदक है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, बहुत से हमारे हृदय में कंजेशन है इमोशंस का। तो जो भगवान के प्रति इमोशंस हैं वो बहुत दबे हुए हैं, और जो भगवान के प्रति इमोशंस हैं वो उसको इवोक करने का कोई चांस भी नहीं मिलता। ये तो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में वापस जाएंगे, कहाँ मौका मिलता है कि हम ये ऐसी बातों को समझें, इस पर मनन करें। तो कैसे, जितना हमारा हृदय हल्का होगा उतना हम भगवान को पुकार पाएंगे। अब एक एक्सरसाइज करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद आपने कभी की नहीं होगी एक्सरसाइज। तो आप सब राधा वृंदावन बिहारी को एक लव लेटर लिखेंगे, ठीक है, अपना हृदय खोल के लिखेंगे। ये खाली आपके और भगवान के बीच की बात है, राइट। जो भी आपके इमोशंस हैं भगवान के लिए, कि भगवान मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, सब कुछ जानते हुए भी मैं इस माया में फंस जाता हूँ, जितना मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पाता, जो भी है ना, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, या भगवान से क्षमा मांगनी है, भगवान का गुणगान करना है, यू आर सो नियर सो डियर स्टिल आई एम सो फार ऑफ, वॉट एवर आर योर इमोशंस, जेन्युइन इमोशंस, उसको एक्सप्रेस कीजिए, ओके। दीजिए टाइम, दीजिए, उसको लिखिए। ये आपका व्यक्तिगत बहुत ही पर्सनल वो है। एंड देन व्हाट विल डू इज, ये जो जप है ये अपने हृदय को एक्सप्रेस करने का तरीका है। जब हम जप को, जैसे चेतन पर बोल रहे थे, खाली करना नहीं, भगवान को मेडिटेट कैसे, ये प्रार्थना हृदय से कैसे निकलेगी? जप का मतलब है एक्सप्रेसिंग योर हार्ट टू कृष्णा। तो कैसे एक्सप्रेस करना है, आप पहले लेटर में कीजिए, देन विल शो दिस लेटर टू वृंदावन बिहारी जी, वो इसको स्वीकार करेंगे, राइट। सो राइट डाउन, ओपन अप योर हार्ट, frankly, openly, genuinely, honestly, with full emotions, just express your heart, express yourself. लैंग्वेज की परवाह मत कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कविता लिखनी है, जो लिखना है, जो आप चाहते हैं भगवान को बताना, बताइए। नाराज़गी है, खुशी है,
मिक्स है, जो कुछ है बताइए। मतलब जल्दी नहीं करना, पर पेस कितना टाइम लगेगा एक्चुअली? नहीं, इसके बाद एक माला करवाएंगे, एक माला करवा के रियलाइजेशन शेयर करके कैसा लगा, उसके बाद सबको बोलेंगे अपना लेटर भगवान को दिखाएं, पीछे से कोई हल्का हल्का कीर्तन करेंगे प्रभु जी या केशवर को जी ये कोई कीर्तन करेंगे, और सब लोग अपना अपना करके भगवान को चिट्ठी दिखाएंगे, फिर खत्म। पहले इसके बाद मैक्सिमम ऐसा बात नहीं। कल के लिए पॉसिबल है कि सुबह अगर क्वेश्चन आंसर रख लें लोग, रख सकते हैं, मैं तो ज़्यादा बेटर है मुझे, क्योंकि अभी प्रसाद का भी लेट हो रहा है और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आएंगे नहीं। हाँ, शाम को आएंगे। क्वेश्चन आंसर कभी भी ले सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चन नहीं भैया, क्वेश्चन आंसर अभी वो प्रसाद भी से एक्चुअली लटका पड़ा है, प्रसाद लटका पड़ा है, वहाँ से प्रेशर आ रहा है सर कि जल्दी लो। हाँ एक्चुअली उनका प्रसाद का टाइम होता है 12:30 से 2, तो उनका सबका प्रसाद होने यहाँ आधा घंटा पहले सब लेट आए, फिर प्ले का आधा घंटा 1 घंटा वो टोटल निकलना। क्वेश्चन आंसर अगर है तो रिलैक्स होकर कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये तो करना है पूरी एक्सरसाइज, ये तो मेन है। नहीं, ये तो है ही है, ये तो है ही है। अगर आप सुबह के लिए अगर टाइम देते फिर एक बार पोल ले लेते हैं, पूछ लेंगे करना हो तो कर पोल लेंगे। ले लेते हैं, 5:30 ठीक नहीं रहेगा बोले क्वेश्चन आंसर जस्टिफाई हो जाएगा, छोड़ देख लेते हैं, पोल ले लेते हैं, पोल ले लेंगे, हाँ पोल ले लेंगे। हरे कृष्णा। आई नो आप तो बहुत कुछ लिख सकते हैं अंदर की बात है, तो प्लीज़ नाउ वी हैव बिकॉज टाइम रिस्ट्रिक्शन सो विल स्टॉप हियर नाउ। इसको आप अपने पेन को रख दीजिए। अब इसी इमोशन में हरिनाम जप कीजिए, एक माला खींचिए। प्रभु जी कहते हैं हरिनाम लेने का मतलब है मुख से बोलना, कानों से सुनना और हृदय से रोना। ओके, सो जस्ट जेन्युइन इमोशन के साथ जो आपने हृदय भगवान को एक्सप्रेस किया, सो नाउ वी कनेक्ट विथ कृष्णा। यू नो यू आर कॉलिंग आउट टू कृष्णा, हे राधा रानी, हे कृष्णा, प्लीज़ engage me, please take me under your shelter, please give me your love, you know, I am very desperate for you। जो आपके इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करते हुए बोलना है, सुनना है, हृदय से रोना है। क्या? स्पीकिंग फ्रॉम माउथ, हियरिंग फ्रॉम ईयर्स, क्राइंग फ्रॉम हार्ट। बोलना, सुनना और हृदय से वो भगवान को पुकारना, रोना। राइट? सो प्लीज चैंट वन राउंड। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस भगवान को चिट्ठी लिखने का? हैं? कितने लोगों ने प्यारी बड़ी चिट्ठी लिखी थी? कितने लोग और लिखना चाहेंगे? दिस यू कैन डू एवरी टाइम, रोज़ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कृष्णा इज आवर मोस्ट डियर लवर। ओके, तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाउ डू यू फील आफ्टर एक्सप्रेसिंग योर हार्ट टू कृष्णा?
कॉन्फिडेंशियल है यस माता जी नहीं लगा और बेटर हो गया ना यस इट बिकम्स वेरी पर्सनल है ना यस सत्य मामा माता लाइटर एंड रिलैक्स्ड यस है ना और या हम हाँ तो जैसे मैं फील कर रहा था जब मैं ऑल्टर में जाता हूँ तो सवेरे के टाइम पे चरण दबाता हूँ मतलब जब बोल रहे थे तो मतलब कृष्ण से ही तो बोल रहे हैं मतलब सुनने में एफर्ट नहीं करना एफर्ट ठीक है कृष्ण कृष्ण प्रार्थना करके बोल रहा हूँ वो नेचुरली सुना जा रहा है या जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान लगा नहीं सुनना पड़ रहा आपस में बात कर रहे हैं हृदय से बात कर रहे हैं तो अपने आप सुनाई देता है सुनना बहुत आसान हो जाता है इसमें इमोशंस हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक पूरे भावनाओं के साथ करना है एक औपचारिकता से नहीं करना हृदय से करना है क्योंकि कृष्ण हमारे बहुत प्रिय हैं उनसे हमारी एक मीटिंग है और हृदय खोल के बात कर रहे हैं ओके और बार बार उसको सुनेंगे करेंगे तो बहुत रेसिप्रिकेशन मिलेगा ठीक है सो या चैतन्य प्रभु प्रभु जी ऐसा भाव आ रहा था कि जैसे जैसे आपने बताया हार्ट से फील कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ एंड इट वाज लाइक कि भगवान बहुत दूर है और उससे प्रेम से जो कनेक्शन जुड़ा रहता था हर एक जाप के बाद में ऐसा रहा था कि एक कदम आगे बढ़ लॉन्ग जर्नी एंड जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम yes we are going near and near to Krishna good thank you so much that is the purpose जप करने का अर्थ है कि after japa we should feel more closer to Krishna yes माता जी शालिनी माता जी प्लीज मुझे मेरे को एक क्वेश्चन है मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कृष्णा को रोज ही लेटर लिखती हूँ रोज ही लेटर लिखती हूँ गुड एंड मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं रोज ट्राई करती हूँ एटलीस्ट 2 पेजेस में लिखती हूँ गुड लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ मैं हमेशा अपने प्रेयर्स में मांगती रहती हूँ वो चीज़ सेल्फ मतलब थोड़ा सा वो मुझे कभी कभी लेट होता है या सो उस प्रेयर में लिख दीजिए कृष्णा यू नो आई एम वेरी सेल्फिश मेक मी सेल्फलेस या कोई बात सो व्हाट मुझे प्रभुपाद का जो आप अभी मेंशन कर रहे थे कि वो बोलते हैं इज लाइक अ पेरेंट वो वाला जो उनका है वो मैं सुनती हूँ तो मुझे उसमें आई कैन एक्चुअली फील दैट यू नो आई एम कॉलिंग माय पेरेंट मुझे वो सच में लगता है लेकिन थोड़ा सा सेल्फलेसनेस कम है थोड़ा सेल्फिशनेस कोई बात नहीं जो प्रेजेंट स्टेट है वो बताइए एट द सेम टाइम भगवान से बोले कि आई नो इट्स नॉट गुड सो क्वालिफाई मी सो दैट आई कैन रेज माई स्टैंडर्ड इट्स नॉट गुड इट्स नॉट द बेस्ट थिंग सो प्लीज़ गिव मी स्ट्रेंथ सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ सो जब शुरू करने से पहले भी प्रार्थना करनी है ऐसे नहीं सुबह उठते माला शुरू कर दी आप 2-3 मिनट लीजिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपका नाम जप करने जा रहा हूँ जो कि मेरे जीवन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि मेरा माइंड ना भटके मैं आपको हृदय से पुकार सकूँ मेरे से जो गलती उसको क्षमा करना प्लीज़ गिव मी स्ट्रेंथ और फिर जप को प्रार्थना करते हुए करना फिर जप ख़त्म होने के बाद फिर से प्रार्थना करनी है थैंक यू वेरी मच और जो गलती हो उसको क्षमा कर देना गिव मी स्ट्रेंथ कि अगला जप और अच्छा करूँ आपसे है ना जैसे आपने ने कितने लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया है ना जब कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो पूरा केस फाइल करने के बाद पिटीशन होती है तो उसमें प्रे करते हैं आई प्रे दैट दिस पिटीशन शुड बी एक्सेप्टेड सो वी प्रे दिस पिटीशन शुड बी एक्सेप्टेड आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए जैसा भी है ठीक है या यू वांट टू से समथिंग जी थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस ये आज तक का मेरा बेस्ट रहा होगा या जैसे आपने बताया वो दृश्य देख के जब करना आई थिंक मेरी 1/4 माला हाँ बट ऐसा तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा तो हम रोके रह नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा सो यू ऐसा नहीं रोना कि ये तो बहुत बड़ी बात है आगे माला बढ़ी नहीं पाओगे तो बहुत अच्छी स्टेज है लेकिन जब हरे कृष्णा ये एक सेवा है ना हमने अपने लिए chanting of the Hare Krishna Mahamantra is the service to Radha Krishna. Why we are chanting? For giving him pleasure.
जैसे कल बताया था, जब हरे सुनते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जब कृष्ण का नाम सुनते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती है। तो बोलो कृष्ण और राधा रानी, मैं टोटली अनक्वालिफाइड हूँ, माई हार्ट इज़ फुल ऑफ डर्टी डिज़ायर्स, डर्टी थिंग्स, बट स्टिल आई वॉन्ट टू गिव यू सम प्लेजर। मैं यही कर सकता हूँ, आपके नामों को जप करके आपको कुछ खुशी दे सकता हूँ। मेरे इस ऑफरिंग को स्वीकार कर लीजिए। दिस इज़ माई ऑफरिंग फ्रॉम माई साइड टू यू। आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम वेरी डर्टी, आई एम वेरी लो, बट स्टिल यू गिव मी अ चांस, सो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग। तो एक ऑफरिंग उनको देनी है, ठीक है ना। हमने अपने इमोशंस में नहीं फंस जाना, तो फिर हम सर्विस नहीं कर रहे, देन वी आर बीइंग वेरी सेल्फिश। वी हैव टू सर्व, गेटिंग द पॉइंट। वी हैव टू सर्व, वी हैव टू गिव देम प्लेजर, सो फॉर देयर प्लेजर वी आर चैंटिंग, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक भक्त आएंगे और गौरांग महाप्रभु और राधा वृंदावन विहार जी को अपना पर्सनल लेटर दिखाएंगे। एंड आई रिक्वेस्ट केशव प्रभु जी अपना वो मधुर कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन करेंगे और सब लोग आकर एक एक करके अपने चिट्ठी जो है भगवान को दिखाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इसको स्वीकार कीजिए और जो भी हमने सुना है हरिनाम के विषय में, हम इसको अपने जीवन में उतार सकें और अपने प्रयासों से हम आपको प्रसन्न कर सकें। राइट? यस माता जी, वांट टू से समथिंग? या गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उनकी कृपा से आपको हरिनाम मिला तो उनको भी धन्यवाद दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। ओके प्रभु जी, आप कैसे शुरू करेंगे? या समवन कैन स्टार्ट चैंटिंग। माला में जब प्रार्थना करते हैं, हाँ, तो प्रार्थना में जो पंच मंत्र है वो करना है या पहले कि मैं अपनी प्रेयर पर आपको ऑफर कर रहा हूँ? प्रेयर में पंचतत्व मंत्र बोलने से पहले प्रार्थना कर लेनी है, फिर पंचतत्व मंत्र भी प्रार्थना है, वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी गुड। ओके, कीर्तन कौन करें? आप शुरू कर दीजिए प्लीज़। सो माता जी पहले आएंगे, एक एक करके आइए और भगवान को अपना लेटर दिखाइए एंड देन यू कैन सिट डाउन इन योर सीट एंड वी कैन चैंट वेरी नाइसली। ओके प्लीज़ प्रभु जी, यू कैन स्टार्ट। मृदंग कौन बजाएगा? आप शुरू कीजिए, करताल लीजिए, स्टार्ट मेडिटेटिव, जस्ट स्टार्ट। हरे कृष्णा प्लीज कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम सब बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Please come, everyone come. एक एक करके पीछे आ जाइए सर. रामा 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 हरे हरे. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu ji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,